السلام علیکم ناظرین، تحریک بقائے اردو کے علمی ادبی پیج پر ہم آپ کے سامنے روزانہ کی طرح حاضر ہیں، لیکن آج کنہی وجہوں سے ہم اپنے اعلان شدہ سمے پر، وقت پر، ٹائم پر آپ کے سامنے نہیں آ پائے شام 5 بجے، کچھ ٹیکنیکل وجہوں سے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے تحریک بقائے اردو کے اس پیج سے معذرت چاہتے ہیں، اور اب ہمارا پروگرام جو میں نے آپ سے پہلے ہی بتایا آج وقت پہ شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اسی وقت ہم نے ایک خبر آپ کو دے دی تھی کہ آج رات 8:30 بجے ہم آپ کے روبرو ہوں گے اپنے مہمان کے ساتھ۔ تو ہمارے ساتھ محترم احمد صغیر صاحب ہیں، میں ان کا ویلکم کرتی ہوں، خوش آمدید سر، تہہ دل سے آپ کا استقبال ہے تحریک بقائے اردو کے اس پیج پر۔ اور میں بتا دوں کہ جناب احمد صغیر صاحب فکشن رائٹر ہیں، اور بہت اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجے کے آپ رائٹر ہیں، اور آپ کو پسند کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ کو پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور تحریک بقائے اردو کے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ ہم سے روبرو ہیں، اور ہم آپ سے بھی معذرت چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے طے شدہ ٹائم پر آپ سے بات نہیں کر سکے، اور اب ہم آپ کے اس سمے روبرو ہیں۔ تو ہم اب آپ سے بات چیت شروع کرتے ہیں سر۔ اگلے 1 گھنٹے تک چلنے والی اس بات چیت سے بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کو ملے گا، ایسی میری امید ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا سوال ہے سر آپ سے کہ آپ کی ابتدائی زندگی، تعلیم و تربیت، آپ کا گھر، پریوار، فیملی بیک گراؤنڈ، اور جو شروعات میں آپ جو سیکھتے ہیں، آپ گیا بہار سے ہیں تو وہاں کا جو ماحول رہا ہوگا، وہاں پہ پڑھائی کا جو ماحول رہا ہوگا، آپ کے جو شروعاتی مدارس رہے ہوں گے جہاں سے آپ نے پڑھائی کی ہوگی، 1 یا 2 یا 3 جہاں سے بھی، ان کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیں۔ بہت بہت شکریہ پرتیبھا صاحبہ۔ سب سے پہلے تو میں تحریک بقائے اردو کا شکر گزار ہوں، اور آپ تمام اراکین کا شکر گزار ہوں، بالخصوص آپ کا کہ آپ نے مجھے کیا۔ آج آپ کے سامنے جہاں تک زمانے کی بات ہے تو میری پیدائش 21 نومبر 1963 کو گیا میں ہوئی، بہار کے بہار محلے میں ہوئی، اور ابتدائی تعلیم میں نے کچھ حد تک مدرسے میں حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے بہار ہائی اسکول سے 1979 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور 1982 میں مرزا غالب کالج سے انٹر کا ایگزام پاس کیا۔ 1984 میں میں نے اسی کالج سے یعنی مرزا غالب کالج سے اردو آنرس کیا، اور 1986 میں مغر یونیورسٹی سے اردو میں نے ایم اے پاس کیا۔ اسی یونیورسٹی سے 1995 میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ میری پی ایچ ڈی کا موضوع تھا جدید اردو تعلیم میں احتیاط بازگشت۔ اس کے بعد میں نے اسی یونیورسٹی سے فارسی میں بھی ایم اے کیا، اور میوزک میں بھی میں نے ایم اے کیا الہ آباد سے۔ تو یہ جو میری تعلیمی سرگرمیاں تھی، اور اسکول سے لے کر میں ایم اے تک، مطلب پی ایچ ڈی تک میں مغرب یونیورسٹی گیا، اور میں یونیورسٹی سے ساری ڈگری حاصل کی۔ اب جہاں تک سوال یہ ہے کہ میں نے جو میرے لکھنے کا جو دور شروع ہوا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں 9th کلاس میں تھا، اسی وقت سے مجھے ادب کا شوق پیدا ہوا، میرے اندر ادب کا شوق پیدا ہوا، اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ تو لیکن 1980 میں نے میٹرک 1999 میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1980 میں میرا پہلا افسانہ واسی کی پانی کا سماچار جون 1980 میں یہ افسانہ میرا شائع ہوا۔ اس کے بعد سے میں لگاتار سر معذرت چاہوں گی
सर माजरत चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ। हमारे नाजरीन हमको बता रहे हैं जनाब जावेद हयात साहब, जनाब निसार अहमद साहब, और मैं खुद भी ये महसूस कर पा रही हूँ, आपकी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही गूंज रही है। या तो आपके हेडफोन में कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है। आवाज़ बहुत जी गूंज रही है और कट कट तो रही ही है, लेकिन बहुत गूंज के, बहुत इको आ रहा है आवाज़ में और क्लियर नहीं हो पा रही है आवाज़। जी, जी तो हेडफोन अगर आपके पास नॉर्मल हेडफोन है, जैसे मोबाइल का हेडफोन होता है, अगर उसे आप लगा सकते हैं तो उससे भी काम चल जाएगा। आप एक बार लगा कर देखें, एक बार उसे। नॉर्मल है। जी, डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब, जी डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब भी कह रहे हैं कि आवाज़ क्यों साफ नहीं आ रही है, गूंज रही है। कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ मसला है, आप एक बार देख लें अगर। तब तक मैं आपको बताती हूँ, जनाब मीर साहिब हसन, जनाब हमीदुल्लाह खान साहब, जनाब जावेद हयात साहब, जनाब जावेद अहमद खान साहब, जनाब डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब, जनाब आशिक अकबर साहब, जनाब अश्क चौधरी साहब हमें इस समय देख रहे हैं। ये शुक्रिया, जी तमाम अहबाब का शुक्रिया। जी है। तो आपके हेडफोन, जी आपके हेडफोन में कोई मसला है, आप इस हेडफोन को चेंज करें। और आप अगर सिंपल जो मोबाइल के ऐसे वाले होते हैं ना, आपके जो ऐसे जो होते हैं सर कार्ड, ऐसे जो अगर होते हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई घर में किसी के पास हो तो आप उसे लगा लें, उससे आराम से आएगी आवाज। ये कुछ ज्यादा आवाज को गूंजा रही है। ये जी जो ये डिवाइस है, इसमें कुछ आवाज सिर्फ मुझे परेशानी होती तो मैं उसको बर्दाश्त कर लेती, लेकिन हमारे सामईन भी आपको ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। सुनना है तो आवाज दब रही है, आवाज गूंज रही है। हमारे सारे देखने वाले ये कमेंट कर रहे हैं। और आपसे जो बात होगी बहुत अहम होगी, तो मैं चाहती हूँ कि सारी बातें साफ साफ सबको सुनाई दें। तो इसीलिए तो अगर आप ये हेडफोन अगर चेंज कर लें तो मेरे ख्याल से आवाज सही आएगी। जी अच्छा, देखते हैं क्या मौजूद है या नहीं है, देखते हैं अगर मौजूद हो। नहीं, आप बस अगर आपके पास हेडफोन, जी अगर आपके पास हेडफोन सिंपल वाला है फोन का, तो भी आप लगा लें। इस ईयरफोन जिसे हम कहते हैं, हेडफोन ना लगा के आप ईयरफोन लगा लें। जी हेलो, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है, जैसे लग रहा है किसी बंद खोह में कुछ कहा जा रहा है। आवाज बहुत इको कर रही है और क्लियर नहीं है बिल्कुल आवाज, और कट रही है। वो तो खैर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है, लेकिन आवाज क्लियर नहीं है। आप ये हेडफोन अगर बदलना चाहें या उसको निकाल कर बोलना चाहें, एक बार आप निकाल के बोलने की कोशिश करें, देखें। अच्छा, अगर आप ना लगाएं, आप वो डिवाइस से निकाल लें, जो कनेक्ट होगा डिवाइस से हटा लें उसको। जी क्या फरमाइए? हेलो, आप जी आप हेलो जी हेलो जी बोलिए। जी हाँ, जी मैं सुन रही हूँ आपको। जी मुझे लगता है कि इस मसले का कोई हल फिलहाल हम ऑनलाइन निकाल नहीं पा रहे हैं, और हमको इस सूरत में ही बात करनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं जितनी बात भी आपकी पहुंच पाए लोगों तक। जी आप अपनी बात पूरी करें सर, आप बोलें सर। जी तो आप अपनी किताबों जी मैं बता रहा था कि मेरा पहला अफसाना बासी रोटी
1980 में शायद हुआ, और उसके बाद से मैं लगातार लिख रहा हूँ और लगभग 100 अफसाने मैं लिख चुका हूँ। मेरा पहला अफसानी मजमूआ मुझे पर 1995 में शायद हुआ। ये मेरा पहला अफसानी मजमूआ है जो 1995 में शायद हुआ। इस मजमूए में जो 20 अफसाने हैं, इस मजमूए में 20 अफसाने हैं, और जब ये अफसानी मजमूआ शायद हुआ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस किताब को इतनी पसंद की जाएगी, और ये मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं कि इस मजमूए ने मुझे बहुत मकबूलियत दिलाई, और इस मजमूए के अफसाने को बहुत पसंद किया लोगों ने। खासतौर पर जिस मजमूए का जो पहला अफसाना है मुझे बहुत लोगों ने पसंद किया, और तो उस वक्त जब ये मजमूआ आया इस अफसाने से मैं जानना लगा। मेरा दूसरा अफसानी मजमूआ अन्ना बांधो ये 2001 में शायद हुआ। इस वक्त मैं दिल्ली में था, तो इस अफसाने का भी पहला जो अफसाना, इस मजमूए का जो पहला अफसाना है अन्ना बांधो, बल्कि ये कहा जाए कि ये निशात लग गया। इस अफसाने को बहुत पसंद किया, और इस मजमूए में जो 14 अफसाने हैं इसको भी बहुत लोगों ने पसंद किया, और ये मजमूआ यकीनन मुंडेर पर बैठा परिंदा से ज्यादा मकबूल हुआ। मेरा तीसरा अफसानी मजमूआ दरमिया कोई तो है, ये 2007 में शायद हुआ, और इस मजमूए में जो अफसाना है दरमिया कोई तो है और भी दूसरे अफसाने, इसको भी बहुत लोगों ने पसंद किया। 2013 में मेरा चौथा अफसानी मजमूआ आता है दाग दाग जिंदगी। तो इस मजमूए में मसीहाई को बहुत पसंद किया लोगों ने, और भी अफसाने बहुत पसंद किए गए, जैसे मैं दामनी नहीं हूँ को भी पसंद किया गया, लेकिन मसीहाई ने मेरी अलग पहचान बनाई। आप देखेंगे कि 4 अफसानी मजमूए में लगभग मेरे पास 14 ऐसे अफसाने हैं जो दलित मसाइल को सामने रखकर लिखे गए। यानी कि कहा जाता है कि प्रेमचंद ने सबसे ज्यादा दलित अफसाने लिखे, और उसके बाद मैंने सबसे ज्यादा दलित अफसाने लिखे। तो उन तमाम अफसानों को जो मेरे दलित अफसाने थे उनको मैंने अपने 5वें मजमूए में, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मैं शामिल किया, इसको इकट्ठा किया, और ये अफसानी मजमूआ 2015 में शाया हुआ, 2015 में शाया हुआ, और इस मजमूए ने मेरी एक अलग पहचान बनाई। ये दलित अफसाने लिखने वाला मैं उर्दू का अफसानेगा तस्लीम कर लिया गया। तो इसमें जो अफसाने हैं अन्ना पाने दो, और इस मजमूए में अन्ना पाने दो, उसके बाद पनाहगाह, तापुन, गुप्ता बका साहिल, यासी है जिंदगी जासासमा, फसील शब में जाता है कोई, पनाहगाह, शुद्धिकरण, बेपनाह जंगल और वजूद, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, आग अभी बाकी है, काहे को ब्याही विदेश, मैं दामी नहीं हूँ, उमर टाइम, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये 14 अफसाने जो दलित मसाइल को सामने रख लिखे गए, और ये मजमूआ मेरा बेहद मकबूल हुआ। मैं आपको ये बता दूं कि इस किताब पे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में से PhD एमफिल, एक लड़के ने एमफिल की डिग्री हासिल की, और एक लड़की ने इसी मजमूए से, इसी मजमूए पर ये केरला यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री हासिल की। और जो मेरा पहला अफसानी मजमूआ है मुंडेर पर बैठा परिंदा, इस पे एक लड़के ने एमफिल किया हैदराबाद यूनिवर्सिटी से। तो ये तो मेरे अफसाने का जितने मजमूए थे वो थे। 2001 में मेरा पहला नावल जंग जारी है शाया हुआ, उसकी कॉपी हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं उसको दिखा नहीं सकता हूँ। 2007 में मेरा दूसरा नावल दरवाजा निगम है शाया हुआ। ये नावल जो है गुजरात में जो फसाद में उस पस मंजर में लिखा गया है कि उस फसाद के बाद जो हालात पैदा हुए गुजरात में,
माशी तौर पे और दूसरे मसाइल जो खड़े हुए उसको मैंने सामने रखकर लिखा है। ये नॉवल मेरा बहुत ही मकबूल हुआ। और मेरा तीसरा नॉवल एक गुजारा ये 2013 में शाया हुआ। क्या बात है। हिंदुस्तान से बाहर जो रहने वाले लोग हैं और जो नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं और उनकी जो फैमिली यहाँ रहती है, यानी उनकी अहलिया जो रहती है, उनकी बीवी रहती है, वो किस तन्हाई के क्रम से गुजरती है, इस मौजूद को मैंने इस नावल में लाया है। और मेरा जो अभी चौथा नावल आया है 2019 में, उसका नाम है आसमां से आगे। क्या बात है, आसमां से आगे मेरा चौथा नावल है। हाँ, ये मेरा चौथा नावल है। और इस नावल में मैंने एक ऐसी लड़की की कहानी बयान की है जो मजहबी जकड़बंदियों में अपनी जिंदगी गुजारती है, लेकिन जब वो बड़े शहर में जाती है और उसको खुलापन मिलता है तो वो किस तरह से आजाद हो जाती है और किस तरह आसमान से आगे जाना चाहती है, वो तमाम चीजें इस नावल में है। ये नावल पढ़ने की चीज है। ये नावल भी मेरा बहुत मकबूल हुआ। बल्कि चारों नावल, जंग जारी है, दरवाजा भी बंद है, एक उजाला और ये आसमां से आगे, ये चारों नावल मेरे बेहद मकबूल। ये तो मेरा अफसानवी और अफसाने का नावल का सफर था। इसके साथ ही मैंने फिक्शन तनकीद पे बहुत काम किया है। खास तौर पे जो मेरी पीएचडी की का जो मौजूद है, जदीद उर्दू अफसाने में एहतिजाज की बाज़गश्त, ये मेरी पीएचडी का मौजूद था। तो इसको मैंने 2003 में इसको मैंने शाया किया। एहतिजाज पर इससे पहले कोई किताब उर्दू में नहीं थी। मैं ये आपको बता दूं, अच्छा। एहतिजाज और उर्दू अफसाने में एहतिजाज पर इससे पहले कोई किताब नहीं थी। मेरी पहली किताब थी जिसको उर्दू हलके में बहुत पसंद किया गया। इस किताब की मकबूलियत के बाद मुझे लगा कि वाकई मैं फिक्शन की तरकीब लिख सकता हूँ। तो मैंने एक किताब और लिखी, उर्दू अफसाने का तनकीदी जायजा 1980 के बाद। ये फिक्शन की तनकीद थी क्योंकि 1980 के बाद के फिक्शन निगारों पे कोई काम नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इस काम को किया और ये किताब भी शाया हुई। जब अफसाने पे काम हो गया तो लोगों का इसरार था कि भाई आप नावल पर भी काम कर दें। तो मैंने नावल पर भी काम किया और उस किताब का नाम है उर्दू नावल का तनकीदी जायजा। ये भी किताब बहुत मकबूल हुई। ये कहा जा रहा है कि ये दोनों किताबें, उर्दू अफसाने का तनकीदी जायजा और उर्दू नावल का तनकीदी जायजा, इस किताब को रिसर्च करने वाले, चाहे वो हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रहे हैं, वो इन दोनों किताबों को अपने पास जरूर रखते हैं और इसको जरूर पढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने तनकीद की एक किताब और लिखी, बिहार में उर्दू फिक्शन, क्योंकि इससे पहले वहाब अशरफी की किताब आई थी बिहार में उर्दू अफसानी गारी, तो लेकिन उनका एक आग था, एक दौर था, वहीं तक हो गए थे। मैंने उसको आगे बढ़ाया और अभी तक जितने अफसानीगार बिहार में लिखने वाले थे उन सबको इसमें शामिल किया, जिससे उनके अफसाने का मैंने तनकीदी जायजा लिया। ये था मेरा अफसाने। इसके अलावा मैंने साहित्य अकेडमी के लिए एक मोनोग्राफ लिखा है अताउल्लाह पारवी पे। अभी मैं साहित्य अकेडमी के लिए दूसरा मोनोग्राफ लिख रहा हूँ शौक न्यूबी पे। और अभी मैंने नेशनल ट्रस्ट के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अफ्रीकी अफसानों का एक मजमुआ जिसमें 26 अफसाने हैं, उसको मैंने उर्दू में तर्जुमा किया है। वो किताब हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन में वो छपकर आ जाए। वो एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अभी तक अफ्रीकी अफसानों का कोई भी इंतखाब उर्दू में शाया नहीं हुआ था। ये पहली किताब होगी जिसको नेशनल ट्रस्ट ने शाया करने का फैसला किया है। तो ये मेरा पूरा अरबी सरगर्मियां थी जिसको मैंने आपके सामने पेश किया। क्या बात है। सर, इतना कुछ जानने और सुनने के बाद एक सवाल मेरे जहन में आया जो मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन आपकी ये सारी जो जिनको आप सरगर्मियां कह रहे हैं, और हम इन्हें कहेंगे कि उर्दू अदब ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी अदब, और हिंदुस्तानी अदब ही नहीं, दुनिया की प्लेटफॉर्म पे अगर हम कहें इंसानियत के हवाले से एक बहुत ही
बड़ी चीज़, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी ओर से ये दिया गया है। तो मेरा सवाल ये है कि आपने लिखना कब से शुरू किया था? आपने पहले पहल क्या लिखा? और कैसे आपको ये लगा कि आप अफ़साना या नॉवेल इस तरह की नस्री चीज़ों को, इन तख्लीकों को आप लिखने के लिए आपके पास अल्फ़ाज़ हैं? आपने शुरुआत कब की और पहले क्या लिखा आपने? मैंने पहले बता चुका हूँ कि जब मैं 9वीं जमात में पढ़ता था, उस वक़्त जी। मैं बच्चों की कहानियाँ पढ़ता था। तो बच्चों की कहानियाँ पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं ये कहानियाँ नहीं लिख सकता? और मैंने कोशिश की। कोशिश की, ज़ाहिर-सी बात है कि शुरू में तो जो इब्तिदाई दौर में जो आदमी जैसे जैसे अल्फाज होते हैं, जैसे जुमले होते हैं, वो मैंने लिखे। और फिर मैं दुनिया में जितने जो, क्योंकि गया एक बहुत बड़ा अदबी हल्का है, और इब्तिदाई दौर से शुरू से लेकर आज तक हमेशा यहाँ बड़े बड़े नाम पैदा हुए हैं। तो ऐसा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिनसे मैंने मदद ली, और मैंने अपनी जो टूटी फूटी जबान में कहानियां लिखी थी उसको मैंने उनको दिखाया कि भाई ये मैं कहानियां लिखना शुरू कर रहा हूँ, क्या है, और देखिए इसमें कुछ है या नहीं है। तो लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की और मैं शुरू में बच्चों की कहानियां लिखने लगा, और वो 2-3 कहानियां रसालों में शायद भी होगी। लेकिन मुझे लगा कि बच्चों की कहानियों में बात नहीं बनेगी, इसलिए बड़ों की कहानियां भी लिखी जाए। तो मैंने फिर बड़ों की कहानियां लिखनी शुरू की और कई अफसाने लिखे। और मेरा पहला अफसाना जिसको मैं मान रहा हूँ, बासी रोटी, वो पालिका समाचार दिल्ली से जो निकलने वाला रिसाला था, उसको जून 1980 में वो अफसाना छपा। और फिर मैंने मुताला भी बहुत किया, क्योंकि मैं उर्दू का स्टूडेंट था और उर्दू में कर रहा था, एमए कर रहा था। तो जैसे जैसे जब मैं बीए कर रहा था मिर्जा गालिब कॉलेज में, तो मैं आपको बता दूं कि जो उर्दू के उस्ताद थे वो मुझे जान गए थे कि ये लिखने पढ़ने का इसको शौक है, तो उन लोगों ने भी बहुत मदद की। और जब मैं एमए में दाखिला लिया तो जितने वहाँ प्रोफेसर थे उन सबको मालूम था कि ये लिखने पढ़ने वाला लड़का है, तो उन लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की। मैं ये बता दूं कि मिर्जा गालिब कॉलेज में एक उस्ताद थे, प्रोफेसर ताजवर साहब, उन्होंने मेरी बहुत मदद की और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से। क्या बात है। आपने इतनी तख्लीक, इतनी किताबें, इतनी चीज़ें आपने दिखाई, और मैं ये भी सोच रही थी कि इतना लगातार लिखने वाला शख्स, इतना लगातार पढ़ने वाला शख्स अपने लिए ज़िंदगी में वक्त कैसे अलग से कुछ निकालता होगा, या फिर उसका वक्त वही है जब वो लिख रहा होता है। यानी वो ज़हन से ही अदीब है, और उसको उसकी जो एक कहते हैं इंसान का एक मकसद होता है दुनिया में आने का, उसका है कि वो लिखता रहे और इंसानियत को, इस दुनिया को बहुत कुछ देता रहे, अपने वक्त को दर्ज करता रहे। वक्त को दर्ज करने की बात आई सर, तो एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि आपने बोला आप दलित लेखन आपने किया है, और उर्दू अदब में ये एक अलग सी और एक बहुत कम हुई ये बात है। और दूसरा, आपने गुजरात के हालात पर अफसाने लिखे हैं, आपने कहा कि आपने उस पर भी लिखा है। तो अक्सर हम ये मानते हैं कि जब हम लिखते हैं तो जब हम फिक्शन लिखते हैं तो हम बहुत कुछ फिक्शन में कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जिनकी ज़मीनी हकीकत से कोई ताल्लुक जिनका नहीं होता है। लेकिन जब आप दलित पर लिखें, जब आप गुजरात पे लिखें, जब वहाँ के जो हो चुका, जो दंगे हुए, राइट्स हुए, उन पर लिखें, या जो मौजूदा हालात पे लिखें, तो आपको फिक्शन में भी हकीकत से रिश्ता बनाए रखना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसे होता है, और फिक्शन राइटर होने के बावजूद आप जो मौजूदा हालात हैं, जो आसपास चल रही घटनाएं हैं, वाकयात हैं, जिनसे आप खुश हों, दुखी हों, चोट लगे, तकलीफ पहुंचे अपने लिए या दूसरों के लिए, उसे कैसे अफसानों में आप दर्ज करते हैं? कैसे ये बैलेंस होता है फिक्शन का और रियलिटी का? एक अदीब के तौर पे आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं तरक्की पसंद ख्याल का आदमी हूँ। जब मैं स्टूडेंट था उसी वक्त से तरक्की पसंद सोच मेरे अंदर घर कर गई, तो जाहिर सी बात है कि मैं तहरीक से जुड़ गया। तहरीक से जुड़ने का एक बड़ा फायदा ये हुआ कि मैं गांव कस्बे कस्बे में घूमता रहा। मैं वहां जाता था और लोगों से मिलता था, दलित लोगों से मिलता था, उसके घर में रहता था, उनके हालात को देखता था, उनके मसाइल को देखता था। इसलिए आप देखिएगा कि अगर आप मेरे अफसाने पढ़िए तो आपको कोई ऐसा किरदार नहीं मिलेगा जो ऐसा लगे कि ये इसको कहीं से लाया गया।
बल्कि ऐसा लगेगा कि ये किरदार बिल्कुल मेरे सामने का है, इसको मैंने देखा। जैसे आप अन्ना पानेदो का जो अन्ना का किरदार है, वो आपको लगेगा कि ये तो वाकई किसी गाँव में हो सकता है। या फिर जो ताफुर का मुनवा किरदार है, जो कुआं बीनने का काम करता है, कुआं बीनता है और वो उसकी रोजी रोटी का जरिया है, और उसको आपको देख कर लगेगा कि अरे ये तो कैरेक्टर रोज मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने। या फिर गुप्तो वर्ता साहिल की जो वो लड़की है, वो जो स्टेशन पर दातुन बेचती है, वो आपको लगेगा कि मैंने तो इसको भी देखा है। तो मैं इन सारे किरदारों को देखा है, उनको परखा है, उनकी जिंदगी में झांक कर देखा है। यही वजह है कि मेरे अफसाने और नावल हकीकत के बिल्कुल करीब है। और आप अफसाने पढ़ेंगे या नावल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारे वाकये कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे हुआ है, हुआ है, और ये बिल्कुल हकीकत के नजदीक है। लेकिन हकीकत को फिक्शन कैसे बनाया जाए, ये सबसे बड़ा हुनर है। और अगर इस हुनर पे आपको गुण हासिल हो गया तो आप एक कामयाब अफसानिगार है, कामयाब नावलिकार है। मैं कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ ये मैं दावा नहीं कर सकता। के हवाले से मेरा नाम दिया जा रहा है, मेरे ऊपर किताबें आ रही हैं, मेरे ऊपर मज़ामीन लिखे जा रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि वाकई मैंने कुछ किया है। अब ये देखिए, मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूँ, ये प्रोफेसर उमा पति जी ने मेरे ऊपर ये किताब लिखी है। इस किताब का नाम है दिल डिस्कोर्स और अहमद सगीर के दलित अफसाने। ये मेरे ऊपर किताब आई है, ये मेरे ऊपर किताब आई है। तो इससे लगता है कि वाकई जो है मैंने कुछ हद तक कुछ किया है, कुछ अफसाने लिखे हैं, कुछ नावल लिखे हैं जो कारी को पसंद आ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं कोई दावा नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा कहानीकार हूँ, बहुत बड़ा नावलिकार हूँ, बहुत बड़ा फिक्शन का नाकिद हूँ। मैं जो मेरे ज़हन में आता है, जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं देखता हूँ, मैं जो जब कोई समाज का कोई शख्स रोता है, कोई भूख से बिलखता है, कोई बच्चा भूख से बिलखता है, किसी पे जुल्म होता है, तो मेरा दिल रोता है, मेरी आँख रोती है, और फिर मैं कलम उठाता हूँ उसको लिखने के लिए। जी नाजरीन, हम इस समय बात कर रहे हैं मोहतरम डॉक्टर अहमद सगीर साहब से, जो अपने वक्त के बहुत बड़े अदीब हैं, अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनको न सिर्फ पढ़ा जा रहा है बल्कि उन पर लिखा भी जा रहा है, और जो कुछ भी दर्ज हो रहा है वो अदब के लिए एक बहुत बड़ी खाती है, दौलत है। हम सब पढ़ने वाले और आगे आने वाली नस्लों में जो लोग पढ़ेंगे उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बचा के बना के रखनी ज़रूरी है। और ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात होती है तहरीक बकाए उर्दू के इस इल्मी अदबी फेसबुक पेज के ज़रिए कि मैं ऐसी शख्सियात से रूबरू हो पाती हूँ, और न सिर्फ रूबरू हो पाती हूँ बल्कि उनसे गुफ्तगू भी कर पाती हूँ, उनसे बात कर पाती हूँ, बहुत कुछ सीख पाती हूँ, पूछ पाती हूँ। मैं जनाब डॉक्टर अहमद सगीर साहब से अगला सवाल ये करना चाहती हूँ कि दलित लेखन, जैसे हम लोग अगर लिटरेचर की ही बात करें तो औरतों के लिए लिखना, दलित के लिए लिखना, दलितों के लिए लिखना, ये एक अलग से बहुत बड़ी ज़रूरत मानी जाती रही है कि वो एक ऐसा तबका है जो जिसको हम कहते हैं वंचित वर्ग है, हिंदी में वो एक लफ्ज़ होता है। तो जो बहुत चीज़ों से महरूम रहे हैं उन पे लिखना, उनकी प्रॉब्लम्स को आगे लाना ज़रूरी है। एक अदीब के तौर पे आपने भी इस पर काम किया है। आपको क्या लगता है कि दलित लेखन या औरतों के मसाइल पर लिखने से क्या वाकई उनकी कोई समस्या हल होती है? क्या अदीब इतना कर पाता है कि वो जिन पर लिखे उनकी ज़िंदगी को भी बदल सके, उनके लिए नए हालात पैदा कर सके? मेरा मानना है कि फनकार का काम मसाइल को उठाना और सामने रखना है। जो मसाइल हैं, चाहे वो दलित मसाइल हो या ख्वातीन के मसाइल हो या और दूसरे जातीयत के मसाइल हो या किसी के भी मसाइल हो, तो फनकार के सामने वो मसला होता है और उसका काम है मसले को समाज के सामने पेश करना। फनकार का कतई ये काम नहीं है कि वो उस मसले का हल तलाश करे या हल बताए। पढ़ने वाले खुद उसमें हल भी तलाश कर लेते हैं और फनकार क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, वो ये भी सोच लेते हैं।
मसले का, दलित मसाइल का जो हल है वो तो जाहिर सी बात है कि सियासी लोग करेंगे, जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे समाज के रहनुमा हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। अब आप देखिए कि आज भी बड़ी तादाद में दलित तालीम से बेबहरा है। तो अब ये फनकार का तो काम नहीं है कि उनको तालीम याफ्ता करे, वो बता सकता है कि देखिए हमारे दलित बच्चे किस तरह से अभी भी पूरा दिन है, किस तरह से दलित की लड़कियां जो है वो दातुन बेच रही है, या उनका किस तरह से जिनसी इस्तेसाल हो रहा है। लेकिन इन सारे मसाइल के लिए तो उन सियासी लोगों को और उन समाजी जो रहनुमा है उनको ही सामने आना पड़ेगा और उनको उस मसले का हल तलाश करना पड़ेगा और उसको मसले को पाए तक पहुंचाना पड़ेगा। तो एक अदीब कितना जिम्मेदारी महसूस करता है इन सब मौजू पे लिखते वक्त, उसकी जिम्मेदारी कहाँ तक महदूद है, कितना वो महसूस करता है? उसकी जिम्मेदारी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या हम उस दबे हमारे जो फनकार है, क्या उनकी निगाह उस दबे कुचले लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ये सबसे बड़ा मसला ये है। अक्सर होता यह है कि हम जो फनकार, हमारे जो लिखने वाले फनकार होते हैं, वो ड्राइंग रूम में बैठकर लिखते हैं और वहां तक नहीं जाते जहाँ ये बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल बहुत बड़ी, ऐसा महसूस किए बिना लिखते हैं जी। हाँ, तो हम बहुत सारे फनकार जो है वो ड्राइंग रूम में बैठ के लिखते हैं, वो नहीं वहां नहीं जाते जहां पर मसला है। अब वो सोचे कि दलित के घर में जाकर आप बैठकर उनसे बातें कर सकते हैं, हमारा ज्यादा फनकार नहीं कर सकता है। वो जो अखबारों में पढ़ता है, वो जो रेडियो पे सुनता है, वो जो टेलीविजन पे देखता है, वो उसी को तस्वीराती तौर पर उसको अफसाना या नॉवेल बनाता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि मैंने सालों साल उन तमाम बस्तियों में मैं गया हूँ, दलितों से मिला हूँ, दलितों को देखा हूँ और उनके घर में रहा हूँ, रात में उनके घर में मैं सोया हूँ। वो मेरी तहरीक का एक हिस्सा था, लेकिन इन तमाम मसाइल को, तमाम किरदारों को मैं वहां से उठाया हूँ और उठाकर मैंने अपने अफसानों में या नॉवेल में पेश किया। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या फनकार उन दबे कुचले लोगों को अपनी तख्लीक में जगह दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर मैंने जगह दी है तो ये मैं समझता हूँ कि मैंने एक छोटा सा काम तो जरूर किया जी। और ये बहुत जिम्मेदारी वाली बहुत बड़ी बात कही जनाब अहमद सगीर साहब ने, और हम इसको महसूस कर पा रहे हैं कि जब आप ड्राइंग रूम में बैठकर खेत खलिहानों की और दलित के मकानों की, घरों की बात करते हैं और खुद भरपेट अपना मनचाहा पकवान खाने के बाद उन चूल्हों के बारे में लिखते हैं जो चूल्हे जाने कितने हफ्तों से नहीं जले होंगे, तो वो असर पैदा ही नहीं हो सकता और ना ही वो जिम्मेदारी आप महसूस कर सकते हैं जो एक अदीब को, एक तख्लीककार को महसूस करनी चाहिए। और शायद वहीं से उसकी जो लिखे में जो एक खिंचाव होता है, एक तासीर पैदा होती है जब आप उस चीज को महसूस करके लिख रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उर्दू अदब के पास डॉक्टर अहमद सगीर जैसा लिखने वाला है, अदीब है जो महसूस करके जी के फिक्शन लिखता जरूर है, मगर वो फिक्शन हकीकत की जमीन पर उगे हुए वो पौधे हैं, वो पेड़ हैं जिनकी छां इंसानियत को मिलती है, और ये बहुत दूर तक जाने वाली बात है। मैं तहरीक की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी सर। मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि ये तहरीक की तरफ से मुझे एक इशारा किया गया है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं और आपसे पूछूं। प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब लिख रहे हैं कि एहतजाजी और मज़ामती अदब पर भी कुछ बात की जाए। देखिए ऐसा है कि तो आप इस छोटे से प्रोग्राम में तो बहुत ज्यादा मैं इस पे नहीं बोल सकता, तो लेकिन एहतजाज पे लिखा बहुत कम गया, बहुत कम लोगों ने लिखा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एहतजाज और मुज़ाहमत अदब में कहाँ है। तो अब आप देखिए कि जो तरक्की पसंद तहरीक का जो दौर रहा 1936 से लेकर 1960 से पहले तक का जो दौर है, उसमें आप देखेंगे कि जितनी शायरी हुई, जितने अफसाने लिखे गए,
जितने नावल लिखे गए उसमें आप ज्यादातर जो तख्लीकात हैं और उसमें एहतजाज है आपको। तो एहतजाज का मेरी नजर में एहतजाज का मतलब ये नहीं है कि तलवार लेके निकल जाए और डंडा लेके निकल जाए और मारपीट करे और वो नहीं। सवाल ये कि है कि एहतजाज गंदी जबान में हो सकता है और जोर आवाज में भी एहतजाज हो सकता है। तो हमारे फनकारों जैसे कृष्णचंद्र के यहाँ या परिंदर के यहाँ, कृष्णचंद्र के यहाँ, बेगी के यहाँ, मंटू के यहाँ, ईश्वर चौपाई के यहाँ, वाहिद तबस्सुम के यहाँ और भी जो उसके बाद भी जितने अफसानीगार हैं तो उनके यहाँ तो बहुत सारे ऐसे अफसाने हैं जिसमें तो अब ये मामला है कि एहतजाज को जब हम डिफाइन करेंगे तो अब उसके तमाम अफसाने को इकट्ठा तो नहीं कर सकते, तमाम अफसानों को मालूम मुझे उतने अफसाने के नाम याद भी नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि तरक्की पसंद तहरीक का जो दौर रहा उसमें एहतजाजी अफसाने या मजामती अफसाने ज्यादा लिखे गए, लेकिन उसके बाद भी जैसे इकबाल मजीद, इकबाल मतीन, आबिद सुहेल, जोगिंदर पॉल और उसके बाद भी हमारे यहाँ मुशर्रफ जोकी, मैं खुद तो और भी बहुत सारे लोगों ने आज भी मेरा कहना है कि मजामती अफसाने लिखे जा रहे हैं, एहतजाजी अफसाने लिखे जा रहे हैं, लेकिन लिखने का जो है अंदाज थोड़ा बदल गया है। अब आप देखेंगे कि शफक का एक नावल आया था कांच का बाजीगर, वो आया था इमरजेंसी के खिलाफ, लेकिन उसमें जो उनका उसलूब था वो बिल्कुल इलामती था, तो बहुत सारे लोगों को वो नावल समझ नहीं आया, लेकिन बाद में जिन लोगों ने लिखा तो उनके यहाँ बिल्कुल वाज़ेह एहतजाज नजर आता है, निजामत है उसके अंदर, तो वो कल भी लिखे जा रहे थे और आज भी लिखे जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब तक समाज में बददामनी कायम रहेगी तब तक एहतजाजी अदब लिखा जाता रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और शायद वही अदब का असली चेहरा है जहाँ से हम सवाल उठाना सीखते हैं और एतराज़ करना सीखते हैं, गलत के खिलाफ बोलना सीखते हैं, और एक आम इंसान को ज़ुबान देने के लिए, एक आम इंसान को अल्फाज देने के लिए ये अदब बहुत काम आता है। हम बहुत चीज़ें पढ़कर बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारे अदीब हमारे आसपास होते हैं, देखते या ना देखते हुए, जिनको हमने पढ़ा है और जिनकी बात, जिनके ख़यालात हमारे ख़यालात में शामिल होते हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस समय मैं एक ऐसे ही अदीब से रूबरू हूँ और बातें कर रही हूँ, मोहतरम डॉक्टर अहमद सगीर साहब। सर, आपका वीडियो शायद थोड़ा सा अटक गया है, मुझे लगता है कि नेटवर्क थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है आपकी तरफ। बहरहाल मैं आवाज़ अगर आपकी आ रही होगी तो मैं इसको, क्योंकि नेटवर्क आज थोड़ा सा जी डॉक्टर सगीर का नेटवर्क, जैसा मैं कह रही थी कि डिस्कनेक्ट हो गए हैं वो। आज शाम को भी कुछ ऐसे ही मुश्किलें पेश आई हमें, जिसकी वजह से हम अपने वक्त पे ऑनलाइन नहीं हो पाए और हमको अचानक रात का ये वक्त रखना पड़ा, लेकिन फिर भी आप सब जो हमारी इस शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, जी सर। जी सर, एक सवाल है, डॉक्टर सोफिया शरीन साहिबा ने आपसे पूछा है कि उर्दू में दलितों पर कितना किस ने लिखा है अब तक, और क्या क्या उर्दू में आपके अलावा और किस ने लिखा है। और ये मैं बजरिए डॉक्टर इरफान आरिफ साहब आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, उन्होंने ये सोफिया मैम का सवाल यहाँ पर पहुँचाया है हम तक। जी, के ऊपर था जिसको हमने देखा है। जी जी मैं बता दूं कि उर्दू में प्रेमचंद से लेकर प्रेमचंद को उर्दू का पहला मौजूद पे लिखने वाला मैं प्रेमचंद को पहला अफसानेगार मानता हूँ। अब उनके यहाँ देखिए कि करीब 6 अफसाने आपको मिल जाएंगे। कफन है, निजात है,
दिल्ली डंडा है, घास वाली है, ठाकुर का कुआं है, तो उनके यहाँ अच्छे अफसाने मिल जाएंगे। उसी तरह कृष्ण दत्त के यहाँ भी मिल जाएंगे, उसके बाद दिल्ली के यहाँ मिल जाएंगे, उसके बाद मंटू के यहाँ 2 अफसाने मिल जाएंगे, इसमें तफाई के यहाँ भी 2 अफसाने हैं, उसके अलावा अहमद बिन कासिमी के यहाँ है। तो ये एक मुझे लगता है कि कोई भी अफसानेगार ऐसा नहीं है जिसके यहाँ 1-2 अफसाने दलित पे नहीं मिले। अब मौजूदा दौर में जब हम आते हैं तो इकबाल मजीद के यहाँ आपके पास बैठी और बहुत अच्छा अफसाना है, उसके बाद सलाम बिन आजाद के यहाँ आप देखिए तो ये कुल्हाड़ी है, या उसके यहाँ वो कामधेनु है। उसके अलावा आप मुशर्रफ अहमद के यहाँ देखिए कि जब ये 1-2 दलित अफसाने मिल जाएंगे। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने लगभग 50 इधर 80 के बाद जो दलित अफसाने लिखे गए 50 अफसानों का इंतखाब मैं शायद कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि वो किताब 2-3 महीने में आपके हाथों में वो किताब होगी। तो मैंने एक किताब, एक जो मामला है अफसाने का, प्रेमचंद से लेकर प्रेमचंद, किशन बेदी, मंटू, इसमें चुगताई, अहमद बिन कासिमी, ये तमाम जो पहले के नाम है। लेकिन सवाल ये फिर उठता है कि क्या 80 के बाद दलित अफसाने लिखे गए थे? ये मेरी अपनी सोच थी, और इस सोच को मेरे सामने रखकर मैंने 80 के बाद के 50 अफसानों को उठा दिया, और ये किताब इंशाल्लाह 2-3 महीने में किताब आ जाएगी। मैंने तमाम अफसानों का तज़किरा भी किया और बताया है कि सिर्फ प्रेमचंद, कृष्णचंद्र और बेदी अंकुर दलित अफसाने नहीं लिखे, आज के अफसानेगार भी दलित अफसाने लिख रहे हैं, और एक बड़ी तादाद है वो अफसाने है। हम वो किताब जल्द इंतजाम पर आ जाएगी। जी, बहुत खूब सर। आपने इतना कुछ लिखा है, आप खुद एक अदीब के तौर पे किससे मुतासिर रहे हैं? देखिए, मैं प्रेमचंद से बहुत मुतासिर रहा, उसके बाद तरक्की पसंद दौर के जितने अफसानेगार हैं उन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया। मंटू को मैं बहुत पसंद करता हूँ, कृष्ण को मैं बहुत पसंद करता हूँ, और अगर उसलूब सीखना है तो आप फिर रणजीत सिंह बेदी को पढ़िए। उसके यहाँ एक अलग अंदाज है, जो यानी कि अलग सा उसलूब है। तो अगर आज के नए अफसानेगारों को अगर कुछ सीखना है तो बेदी से उसलूब आप सीख सकते हैं। इसके अलावा भी आप इकबाल मजीद को पढ़िए, इकबाल मकीन को पढ़िए, आबिद सुहेल को पढ़िए, यहाँ तक कि जुबिन कौर को पढ़िए। तो इन तमाम लोगों के यहाँ ऐसे अफसाने हैं जिसको आप पढ़कर कुछ सीख सकते हैं। तो जो तरक्की पसंद अदीब है, मैं उनसे बेहद मुतासिर हूँ, और यही वजह है कि मैं खुद तरक्की पसंद का कायल हूँ और उस तहरीक से मैं जुड़ा हूँ। जी, और मेरा अगला सवाल है सर कि जो लोग अफसाना निगारी करना चाहते हैं, कहानियाँ लिखना चाहते हैं, नॉवेल लिखना चाहते हैं, उनके पास सोचने और ख्याल बुनने वाला दिमाग भी है, अल्फाज भी हैं, लेकिन फिर भी वो शुरू नहीं कर पा रहे या लिख नहीं पा रहे, तो एक अदीब के लिए क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो ज़रूरी हैं ताकि आप कुछ लिख सकें? क्योंकि सिर्फ अल्फाज होना और ख्याल होना ही काफ़ी नहीं होता, कुछ तो अलग होता है जो आप एक इंसान को एक राइटर बनाता है। तो राइटर बनने के लिए आज के लोग जो लोग चाहते हैं कि वो लिखें और लिखने की फील्ड में आगे आएँ, अपने ख्याल को एक अफसाने के रूप में, अफसाने की शक्ल में ढाल सकें, उनके लिए आपकी क्या एक कोई टिप्स होगी? तो टिप्स तो मैं नहीं दूंगा। देखिए, ऐसा है कि अफसानेगार जो है वो मेरी नजर में 2 तरह के होते हैं। एक तो वो है जो बिल्कुल फितरी तौर पे अफसानेगार है, जो उसको सोचता है और अफसाना लिख देता है, उसके पास अल्फाज खुद ब खुद आ जाते हैं अफसाने के लिहाज से, मौजू के लिहाज से। और एक ऐसे जो पढ़कर या मुतासिर होकर अफसाने लिखते हैं, तो लगता है कि भाई मैं भी अफसाना लिख सकता हूँ, तो वो लिखते हैं। लेकिन नई नस्ल के सामने बड़ा मसला ये है कि एक तो वो पढ़ नहीं रहे। जब तक आप जो क्लासिक अदब है, जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे और क्या लिखा गया है उर्दू में, कैसे कैसे अफसाने लिखे गए हैं, जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आप अफसाने नहीं लिख सकते।
दूसरी बात ये कि आज का आज के जो अफसानिगार है, जो नई नस्ल के अफसानिगार है, वो चाहते हैं कि बस 2-4 अफसाने लिखे और हम मकबूल हो जाए। और उसकी एक वजह भी है। उसकी एक वजह ये है कि आज सोशल मीडिया ने उनको इतनी सहूलतें दे दी है कि आप अफसाना डाला फेसबुक पे या किसी ग्रुप में डाला और 10 लोगों ने 20 लोगों ने अपनी राय दे दी, और ज्यादातर लोग तारीफ करने वाले होते हैं, तनकीद करने वाले नहीं होते हैं। अब तारीफ करने के बाद भी होता है कि वो अफसानिगार को समझता है कि भाई मैं तो बड़ा अफसानिगार बन गया, अब उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद फिर वो जो अपने अंदर उसके अंदर जो क्वालिटी उसके अंदर पैदा होनी चाहिए या जो अपने अंदर पैदा करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। अब 2-4 अफसाना लिखकर ही वो समझते हैं कि बस मेरा काम हो गया, मैं मकबूल हो गया, अब तो मैं उनसे बड़ा हो गया, उनसे बड़ा हो गया, उनसे बड़ा हो गया, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये कमी है नई नस्ल में। नई नस्ल को चाहिए कि वो खूब पढ़ें। मैं खुद आज भी 4 घंटे 5 घंटे जरूर पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद ही लिखता हूँ। जब अफसाना लिखता हूँ तो सोचता हूँ कि बस कुछ अफसाने पुराने पढ़ लिए जाए, देखे जाए कि क्या है, उसके बाद फिर आदमी लिखने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि नई नस्लों को ज्यादा पढ़ना चाहिए। और पढ़ने की दूसरी बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया से मौजूद बहुत उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया से जो आप वाकयात देख रहे हैं, जो छोटी छोटी फिल्में आ रही हैं, उससे लोग मौजूद उठाकर अफसाने लिख रहे हैं, जो गलत है। आप समाज के बीच में जाइए, समाज के लोगों से मिलिए, उनके दुख को दर्द को समझिए, और तभी आपके अफसाने में वो जो कसक है, जो दर्द है, जो चीजें आनी चाहिए, वो आपके अफसाने में चीजें आएंगी और जो आपको नोटिस नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। बहुत मुख्तसर, लेकिन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में शॉर्ट एंड क्रिस्प जवाब, बहुत ही सब कुछ अपने में समेटे हुए, और नई नस्ल के लिए एक सीख भी है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको अदीब बनना है तो किस तरह से, किस रास्ते चलना होगा। शॉर्टकट कभी भी कामयाबी तक आपको नहीं पहुंचा सकता, चाहे आप सोशल मीडिया के जरिए पाना चाहें, या आजकल लिखने वालों को लिखने से पहले छपने की बहुत जल्दी होती है। वो चाहते हैं फट से वो छप जाएं, तुरंत उनको मकबूलियत हासिल हो जाए, लोग उनका ऑटोग्राफ लेने लगे, लोग उनकी किताबें खरीदने लगे। ऐसे में वो बहुत लंबा सफर तय नहीं करना चाहते, जिसको कहते हैं हम मेहनत करना, अपने आप को लगातार निखारना, तराशना। आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही सर, तारीफ और तनकीद की बात आपने कही। आज के ज़माने में दिक्कत ये है कि एक तो अगर हम कुछ लिखें तो हमें तारीफ ही चाहिए होती है, हम अपनी लिखी हुई चीज़ की बुराई सुनना नहीं चाहते हैं। दूसरा ये कि तनकीद कौन सही कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये भी समझना बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है एक अदीब के लिए उसकी तख्लीक, उसकी कहानी, उसकी नॉवेल की तनकीद की जाए, ये कितना ज़रूरी है, और तनकीद किसी के लिखे हुए को कितना निखार सकती है, और अदब में तनकीद का क्या रोल है? देखिए, मैं ये बता दूं कि तनकीद जो नाकिद है वो फनकार के पीछे चलता है, फनकार के आगे नहीं चलता है। यानी कि जहां पर और फनकार ने जहां पर अपनी बात खत्म की है अफसाने में या नॉवेल में, नाकिद वहां से अपना काम शुरू करता है और तब वो तलाश करता है कि इसमें क्या है क्या नहीं। तनकीद दो तरह से हम उसे देखते हैं। एक तो है कि बेजा तारीफ ना की जाए, यानी कि अफसाने में अगर कोई खामी है, कोई कमी है, कोई कमजोरी है, और अगर हम उसकी तारीफ कर देते, कोई नाकिद अगर उसकी तारीफ कर देता है कि भाई इसमें तो ये है बहुत सारी चीजें हैं, तो अफसानिगार उन कमियों की तरफ तवज्जो नहीं करता, और फिर जब दूसरा अफसाना लिखता है, दूसरी तख्लीक करता है, तो वो कमियां वहां भी मौजूद हो जाती है, वहीं रहती है। तो नाकिद का काम यह है कि वो सही तनकीद करे कि भाई अगर अच्छी चीजें हैं अफसाने में, कुछ काम की बातें हैं, बहुत अच्छा अफसाना है, बहुत अच्छा किरदार है, बहुत अच्छा मौजू है, बहुत अच्छे मसाइल पे लिखा गया है, तो हम उसकी तारीफ जरूर करें, लेकिन झूठी तारीफ ना करें। झूठी तारीफ करके हम एक कमजोर अफसानिगार पैदा करते हैं। तो झूठी तारीफ ना करें, और ऐसा भी नहीं कि हम अगर उस अफसाने में कोई बहुत अच्छा अफसाना है, हम उसकी ना करें कि भाई उसकी मिट्टी पलीत कर दें कि भाई इसमें तो कुछ नहीं है। तो उसमें
हौसला हौसला शिकनी भी होती है। तो हौसला अफजाई करें, लेकिन इस हद तक करें कि अफसाना को, अफसाना निगार को फायदा हो, और हौसला शिकनी इस तरह करें कि अफसाना निगार जो है वो समझे कि भाई मैंने कुछ लिखा ही है। तो तनकीद से फायदा भी है और नुकसान भी है, दोनों चीजें। जी, और तख्लीकी तनकीद क्या है? तकनीकी तनकीद ये है कि तनकीद तो जाहिर सी बात है, तनकीद की कई किस्में हैं, बहुत सारी किस्में हैं, और मैं तो बाज़ाब्ता अपने को नाक़िद महसूस नहीं करता, मैं नहीं समझता, नहीं तस्लीम करता। मैंने सिर्फ तनकीद जो भी मैंने लिखी है वो बात उनको सामने रखकर लिखी है। मैंने उस तरह से तनकीद नहीं की जिस तरह से जो हमारे बड़े बड़े नाक़िद करते हैं, उस तरह से मैंने तनकीद नहीं की। तो तख्लीकी तनकीद ये है कि जिस तनकीद में तख्लीकियत हो, ऐसा लगे कि वो उसमें तख्लीकियत है, हम उसे तख्लीकी तनकीद कहते हैं। एक तो तनकीद वो एक जिसको हम लोग कहते हैं कि डंडा मारने वाली तनकीद होती है कि भाई इसमें ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है, ये कमी है, ये कमी है। लेकिन एक है कि हम उस तख्लीक को बाज़ाब्ता पढ़कर और महसूस कर हम उसकी तनकीद लिखते हैं। लेकिन ये काम वही कर सकता है जो तख्लीक लिखता है, जो अफसाने लिखता है, जो नावल लिखता है, जो शायरी करता है। अगर वो तनकीद लिखता है तो उसमें ये अनासी जो तख्लीकी तनकीद के अनासी है, उसमें वो चीजें जरूर आ जाएंगी। अब आप देखिए कि फारूकी साहब को भी नावल लिखने की जरूरत पड़ गई, फारूकी साहब को शायरी करने की जरूरत पड़ गई, अफसाने लिखने की जरूरत पड़ गई। तो इसका मतलब कि उनको लगा कि भाई मैं तो तनकीद का काम कर दिया, अब तख्लीक का भी काम करना चाहिए। तो उन्होंने तख्लीक का भी काम किया है, तो ये काम वो भी हो गया उनका। जी सर, आपने कहा कि नए लिखने वालों को पढ़ना जरूर चाहिए, पढ़ना पहले जरूरी है। लेकिन कभी कभी होता है कि जब हम नए लिखने वाले होते हैं और हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो हमारी कलम पे उनका असर आने लगता है, मतलब हम कहीं ना कहीं उनको फॉलो करने लगते हैं, उनकी टेक्निक को फॉलो करने लगते हैं, और एक न चाहते हुए भी जिससे हम मुतासिर हैं हमारे लिखने में उनका अक्स आने लगता है, जो कि एक बुराई है। हम जितना ओरिजिनल रहें उतना ज्यादा अच्छा है। तो आप के हिसाब से जब हम किसी को पढ़ते हैं, जब हम ढेर सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं, हम उससे इतना मुतासिर होने से कैसे बच सकते हैं कि हमारी खुद की तख्लीक पर, हमारे खुद के अफसाने पर, हमारी खुद की कलम पर उनका असर ना आने पाए? आपने सही सवाल उठाया है कि जब हम पढ़ते हैं किसी को तो असर हम जरूर कबूल करते हैं, तो असर तो होता ही है। किसी न किसी अफसाना निगार, किसी न किसी फनकार का, किसी अफसाना निगार का, नावल निगार का असर नए लिखने वालों पर होता है। लेकिन ये इब्तिदाई दौर में होता है, जब वो अफसाना लिखना होता है तो वो असर होता है, लेकिन वो असर धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है और फिर उसकी अपनी एक अलग पहचान बन जाती है। अब आप देखें कि 1980 के बाद के जो अफसाना निगार हैं, तो उनके सामने दो चीजें थी। एक तो था कि तरक्की पसंद दौर का एक लंबा सफर था, और जदीदियत का भी एक लंबा सफर था, और इन दोनों के बीच में से उनको एक रास्ता निकालना था। भाई 80 के बाद के की पहचान क्या होती? तो जब जदीद अफसाने आए तो जदीद अफसाने के आने से कारी कट गया, कारी अफसाने से अलग हो गया। अब वो पढ़ना, अब वो डिक्शनरी लेकर तो बैठेगा नहीं क्या इस इलामत का मफहूम क्या है, या इस इस्तिआरे का मफहूम क्या है, और उसके बाद फिर वो अफसाने को समझे। तो अफसाने का कानून जो है वो अफसाने से दूर हो गया। तो 80 के अफसाने वालों के सामने बड़ा मसला था कि हम क्या लिखें कि मेरी पहचान अलग हो। तो आप अगर 1980 के बाद के अफसानेगारों का मुताला करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जदीदियत और तरक्की पसंद के बीच से रास्ता निकाला, और उसमें वो कामयाब हुए। यही वजह कि अहमद फरीद या और दूसरे लोग जितने अफसानेगार हैं वो अपनी पहचान बनी। अब एक सवाल जो आपका है कि असर तो आपका होगा ही, लेकिन आप को ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने आप को दूसरे अफसानेगारों से कैसे अलग करें। जैसे मौजूद तो वही रहता है, मौजूद प्रेमचंद के वक्त में था, ईश्वर के वक्त में था, बेदी के वक्त में था, मंजूर के वक्त में था, मौजूद लगभग वही होता है। लेकिन जब आप मौजूद का जो असर होता है कि ट्रीटमेंट, आपने ट्रीटमेंट कैसे किया, तो वही आपका ट्रीटमेंट भी जो है आपकी पहचान है, आपको अलग करता है।
दहेज का भी लिखा जा रहा है, फसाद पे आज भी लिखा जा रहा है, औरतों पे जो जुल्म हुआ उस पर आज भी लिखा जा रहा है। दलितों पे जुल्म हुआ था, उन्होंने लिखा था, आज भी दलितों पे जुल्म हो रहा है, आज का जब निगाह लिख रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कफन में लिखा गया आज का निगाह भी कफन लिखेगा, वो कफन से अलग हट के लिखेगा, उसके आगे की चीज लिखेगा। जिस तरह से की मौत हो जाती है तो आज भी दलित की मौत हो रही है, आप जैसा निगाह लिख रहे हैं, लेकिन वो उससे अलग लिखेगा। तो अलग कैसे लिखेगा ये तो अफसर निगाह को तय करना है कि हम जो अफसर निगाह पहले मशहूर हो चुके हैं, जिनकी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, हम अपने आप को उनसे कैसे अलग कर सकते हैं। तो मौजूद तो वही होता है। तो मौजूदी सतह पर, तकनीकी सतह पर और ट्रीटमेंट स्तर पर हम अपने आप को कैसे अलग करते हैं, ये सरकार को खुद सोचना पड़ेगा। एक बार मैं आपको बता दूं कि अफसर लिखता है, फौरन डाल दिया फेसबुक पे, फौरन डाल दिया सोशल मीडिया पे, और उसकी तारीफ हो गई अब उस नाम पे। हम लोग जब अफसर लिखते थे तो जब रिसाले को भेजते थे, रिसाले का जो मुद्दा होता था वो वापिस कर देता था। तो जब वापिस करता था तो उस अफसर को मैं फिर पता था कि इसमें कहाँ कमी लग गई, उसे वापिस कर दिया। तो अब उस कमी को मैं तलाश करता था, उस कमी को तलाश करके फिर वो अगर कोई कमी लगी तो उसको ठीक किया, और नहीं कमी तो फिर दूसरे रिसाले को भेजा, वो अफसर छप गया। हम लोग इस अफसर लिखकर और सबको अपनी पहचान बनाई। दूसरी बात यह है कि अफसर निगार को अपना नाकिद खुद बनना पड़ेगा। अब ये सवाल है कि अपना नाकिद कैसे होगा। जब आप अफसर लिख लीजिए और जब आपको इत्मीनान होगा कि अफसर मेरा मुकम्मल हो गया है, तब आप एक नाकिद की निगाह से उसको पढ़िए कि अगर ये अफसर दूसरे का है और मैं नाकिद हूँ और मुझे इस पर तहकीक लिखनी है तो मैं इसमें क्या क्या खामियां निकाल सकता हूँ। और जब आप इस निगाह से उसको पढ़िए, जब इस निगाह से उसको पढ़िएगा तो उसकी सारी खामियां कमजोरियां और मुकम्मल अफसर। क्या बात है, वाह, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। और बहुत ही अच्छी बात कही आपने सर। कल हम लोग जनाब शमाइल अहमद साहब से जब मैं बात कर रही थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि आपका टॉपिक थीम मौजू एक हो सकता है, लेकिन आपका ट्रीटमेंट हमेशा अलग होना चाहिए और वही आपको एक अलग पहचान देता है। आपका ट्रीटमेंट, किसी कहानी को लिखने का जो आपका अपना तरीका है, वही आपका सिग्नेचर बनता है। तो ये सही बात है कि हम मुतासिर सबसे हों, लेकिन अपनी एक जगह होनी ज़रूरी है। और फिर जो आपने कहा कि जो पहले कहानियाँ हम भेजते थे रिसालों को, रिजेक्ट होके लौटती थी, तो हमें सीखने का बहुत मौका मिलता था। अब हर किसी के पास अपना फेसबुक पेज है, वो उस फेसबुक पेज, वो एक मैगजीन है, एक रिसाला है जिसका वो खुद ही एडिटर है, तो वो खुद छाप देता है और वाह वाह सुन के खुश होता रहता है। और सीखने की उसके अंदर जो एक ख्वाहिश सीखने की होती है, जो एक कोशिश सीखने की होती है, वो कम से कमतर होती जा रही है। ये हमारे आज के जो दौर के लोग हैं, उनके लिए, आज के जो नए अदीब हैं, नए लिखने वाले हैं, उनके लिए ये खतरे की बात है और जिससे उन्हें खुद ही बचना भी होगा। सर, हमारा वक्त जो है प्रोग्राम का वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और जैसा कि आपने कहा था और मैं भी जानती हूँ कि आपसे बात करना, मतलब जब हमारे सामने ऐसी शख्सियत होती हैं तो हमको पता है कि 1 घंटे में हम कितना कुछ ही समेट पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि सागर से अगर हमें कुछ बूंदे, कुछ कतरे मिल जाएं तो भी हमारे लिए बहुत होता है। तो मैं आखिर में एक दो सवाल आपसे और करूंगी। पहले तो ये सवाल है आपसे, मैं अगला सवाल जो करूंगी कि लिखते वक्त आप अपने किरदारों को, अपने कहानी के उस थीम को और पढ़ने वालों को अपने जहन में कितना रखते हैं, या कितना हमें रखना चाहिए? क्या हमें लिखते समय ही ये सोचना चाहिए कि क्या ये पढ़ने वाले को पसंद आएगा या ये रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर किरदार कहानी का हमें कहीं घुमा के ले जाए तो हमें उसके साथ कितना घूमना चाहिए, उसको पकड़ के रखना चाहिए? ये एक टेक्निक हम आपसे जानना चाहेंगे जरूर। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जिस मौजू का इंतखाब किया लिखने के लिए, कि सबसे पहले अफसाना लिखने से पहले आप मौजू का इंतखाब करती हैं कि हम इस मौजू पे अफसाना लिखें कि नहीं लिखें। सबसे पहले तो मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि जो वाक़यात हो रहे हैं
हादसा हो रहे हैं, जो कुछ समाज में घटित हो रहा है, जो हिंदी लफ्ज है घट रहा है, घटित हो रहा है, तो क्या उस मौजूद में अफसाना लिखा जा सकता है या नहीं? पहले ये सवाल था। जब ये मेरा जहन मुझे तैयार करता है कि नहीं इस मौजूद पे आप लिख सकते हैं, लिखना चाहिए, तब उसको अफसाना ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने दिमाग में, और अफसाना ढूंढने का फिर अफसाना ढूंढते हैं तो किरदार हमारे सामने होता है, जिस किरदार पे हम लिखना चाहते हैं, तो वो किरदार हमारे सामने होता है। मैं कतई इसका कायल नहीं हूँ कि अफसाना लिखने के बाद इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। आदमी इसको पसंद करेगा कि नहीं करेगा, बाकी इसको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप नहीं कि फिर वो अफसाना वो नहीं अफसाना बन गया, अफसाना नहीं बन पाएगा जैसा अफसाना होना चाहिए। मैं ये तय कर लेता हूँ कि मुझे ये अफसाना लिखना है, इसको लिखना है, तो मैंने लिख दिया। लिखने के बाद हम उसके बाद राष्ट्रपति उसमें जो कमी होती है उसको ठीक करते हैं, किरदारों को दिखाते हैं, और उसमें जो किरदार की जुजियात है उसको उस पर गौर करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि मैं ये जरूर कोशिश करता हूँ कि मैं इस अफसाने के जरिए समाज को क्या दे रहा हूँ। मैं इस अफसाने के जरिए समाज को, क्योंकि फनकार का काम ही नहीं है कि हम तफरीह आपकी तफरीह करें, हम तफरीह के साथ आपको कुछ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, हम समाज में कुछ दे सकते हैं कि नहीं सकते। जो फनकार का ये काम नहीं किसी को अफसाना लिखना, हम समाज का वो एक अहम शख्स होता है, तो उसका काम ये भी है कि हम अपने अफसाने के जरिए, अपने नावल के जरिए वाकई कुछ अपने कारी को, पढ़ने वाले को कुछ दे रहा हो, तो वहां पर मुझे दिली तस्कीन होती है कि मैंने लिखा। जैसे अभी आप देखिए, अभी इस शुमारे में अगस्त के ऐवान उर्दू के शुमारे में एक अफसाना मेरा आया है, ये कहानी नहीं है। ये कहानी नहीं है, ये कहानी नहीं है। अब उस पर हालांकि उसको अभी तो चूंकि रिसाला आ नहीं रहा बाजार में, तो उसको फेसबुक पे डाला है और पढ़कर अपनी राय लिख रहे हैं। तो सबसे अभी जो मसला है कि शनाख्त का मसला, ये बहुत बड़ा मसला है। हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनके सामने एक शनाख्त का मसला खड़ा हो गया है, और उस शनाख्त के मसले को मैंने सामने रखकर ये अफसाना लिखा है, और अफसाने की लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने अपने कभी सीखे हैं। तो लगा कि जो अभी हिंदुस्तान का मौजूदा जो हालात है, मैंने उसको सामने रखकर एक अफसाना लिखा, और मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ। और जो अभी जो अब तरी फैली हुई है हमारे समाज में, हमारे मुल्क में, तो मैंने उस मौजू पर अफसाना लिखा, और लोगों को वो अफसाना बेहद पसंद आया। जी, और एक है तख्लीकी तनकीद और तख्लीकी नस्र में क्या फर्क है? देखिए, तख्लीकी तनकीद के बारे में तो मैंने बताया कि तख्लीकी तनकीद लिखने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग लिख रहे हैं। ज्यादातर तो तनकीद ही लिख रहे हैं, तख्लीकी तनकीद लिख रहे हैं। तख्लीकी नस्र तो है जो अफसाना, नॉवेल, ड्रामा, ये तख्लीकी नस्र के जुमरे में आते हैं। तो जिसमें कहानीपन हो, कहानियत हो, वो तख्लीकी नस्र है। वो कहानीपन बहुत सुंदर कहानी। जिसमें कहानीपन हो वो तख्लीकी नस्र है, और जिसमें कहानीपन नहीं हो वो गैर तख्लीकी नस्र है। ये तो डिफिनेशन, तो ये दो स्टूडेंट्स को बताए जाते हैं कि जिसमें कहानीपन हो वो तख्लीकी नस्र है, और जिसमें कहानीपन नहीं हो वो गैर तख्लीकी नस्र है। ये उसका डिफिनेशन है। क्या बात। और इस दुनिया में, हर इंसान में, हर शय में जो कहानीपन ढूंढ निकाले वो होता है अदीब, और वो होता है डॉक्टर अहमद सगीर जैसा अदीब शख्सियत। मैं उनको सलाम करती हूँ हमारी तहरीक के इस पेज पे हमसे बात करने के लिए। सर, आखिर में आपसे एक सवाल मैं करूँगी, जो हम प्रोग्राम के आखिर में करते हैं, ज़रूरी होता है ये सवाल, कि उर्दू के हवाले से जो नई नस्ल है, स्टूडेंट्स हैं, हमारे उर्दू की बका के लिए काम करने वाले लोग हैं, जो लगातार कोशा हैं इसके लिए कुछ न कुछ वो करते रहते हैं,
उनके लिए आपका पैगाम कि कैसे हम उर्दू जो एक ज़बान ही नहीं है, एक अदब है, एक तहज़ीब है, एक पूरा का पूरा कहते हैं ना ख़याल का की एक दुनिया है, जिससे निकल के आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। उर्दू बोल के ही आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसकी बका और तरबीज के लिए आप बताएं कि कैसे नई नस्ल लगे और जो लोग लगे हुए हैं वो कोशिशों को और कैसे आगे ले जाएं और अपने काम को पूरा करें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उर्दू हमारे घर से गायब हो रही है जी। क्या हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे हैं? अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कि हम उर्दू के साथ बेईमानी कर रहे हैं। सबसे पहले हर शख्स ये तय कर ले कि हम अपने घर से इसकी शुरुआत करेंगे। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो आप उसको उर्दू पढ़ाएं। और अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ सकता है, लेकिन आप घर पे एक मौलवी रखकर, एक उस्ताद रखकर उसको उर्दू पढ़ा सकते हैं, उसको उर्दू पढ़वा सकते हैं। अब जब वो उर्दू पढ़ेगा तो यकीनन उर्दू के फरोग के लिए वो उसको सोचेगा, आगे जाएगा, आगे कुछ करेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि दूसरी बात यह है कि ठीक है, बहुत सारे जो गार्जियन है वो नहीं इस तरफ तवज्जो देते हैं, तो जो उर्दू के फरोग के लिए काम कर रहे हैं या जो इदारा काम कर रहा है, वो छोटे छोटे ग्रुप बनाए। वो एक मोहल्ले में एक कमरा ले ले और हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन या 1 घंटे, एक दिन में 1 घंटे वो वहां पे उर्दू सीखने वाले बच्चों को बुलाए और वह उनको उर्दू सिखाए। जब वो उर्दू सीख जाएंगे तभी तो वो उर्दू अदब पढ़ेंगे, तभी तो हमारे अफसाने को पढ़ेंगे, शायरी को पढ़ेंगे, गजल को पढ़ेंगे, नज़्म को पढ़ेंगे या तनक़ीद को पढ़ेंगे। हो ये रहा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो उर्दू से बिल्कुल नाबलद है, वो नहीं पढ़ रहे। और जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो भी जैसे उर्दू पढ़ रहे हैं, वो कहने की बात नहीं है। तो अब यह है कि जो इदारे काम कर रही हैं उर्दू के लिए, उर्दू की बका के लिए, उर्दू के फरोग के लिए, वो ठीक है, हफ्ते में 2 दिन ही तमाम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को या गैर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इकट्ठा करके अगर उनको उर्दू सिखाया तो उर्दू सीखने वाले बच्चों की तादाद बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे उर्दू के जो तलबा है, जो बराबर उनका मजमून है, वो भी सही से उर्दू नहीं पढ़ पा रहे हैं, उर्दू अदब को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको उन तक भी हमारे जो ये इस तरह के इदारे काम करें, उनको वहां भी पहुंचना चाहिए। वो हफ्ते में 1 दिन मिस कराए, हफ्ते में उनको हफ्ते में या 15 दिन में मजमून नवीसी के लिए उनको मुतासिर करें और नए बुलाए, उनको कोई कॉम्पिटिशन कराए, ताकि उर्दू उनके अंदर उर्दू की दिलचस्पी पैदा हो और वो उर्दू सीखे, उर्दू पढ़े और उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। हो ये रहा है कि हमारे जो नई नस्ल के लोग हैं वो उर्दू पढ़ नहीं रहे हैं। तो अब ऐसे में हम बहुत अच्छे अफसाने लिख लें, बहुत ज्यादा अफसाने लिख लें, बहुत किताबें लिख लें, लेकिन क्या हमारे बाद जो आने वाली नस्ल है क्या वो इन सरमाया को बचा के रखेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल हम अपने घर से शुरू कर रहे हैं। इसलिए मेरे 2 बच्चे हैं और मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बावजूद मैं दोनों बच्चों को मैं उर्दू मैंने उसको पढ़ाया, सिखाया और हमारे सारे दोनों बच्चे हमारी तमाम किताबों के बारे में जानते हैं, हमारे अफसानों के बारे में जानते हैं, हमारी किताबों के बारे में जानते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि जो सरमाया मैं छोड़ कर जा रहा हूँ उसकी रखवाली करने वाला कौन होगा? अगर हर आदमी ये सोच ले कि अब आप देखिए कि मजहब की जितनी किताबें हैं वो सब उर्दू में, तो अब वो जब वो बच्चा नहीं जानेगा तो वो हिंदी में मजहब के बारे में क्या जानकारी हासिल करेगा? हिंदी किताबों से पढ़ के क्या जानकारी हासिल करेगा? तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने घरों से शुरू करें, हम अपने मोहल्लों से शुरू करें, हम अपने शहर से शुरू करें। और अगर हम ये तहरीक चलाते हैं, तहरीक तो कोई एक ही आदमी चलाता है, 2 आदमी चलाता है, और वो कहा गया है कि मजदूर ने कहा लेकिन हम अकेले ही चले थे और वो कारवां बनता चला गया, तो कारवां तो बनेगा, तो लेकिन ये है कि आपको उसके लिए सामने आना पड़ेगा और उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, तभी हम उर्दू को बचा सकते हैं और एक उर्दू का बड़ा हल्का हम पैदा कर सकते हैं। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी। बेशक तहरीक शुरू कोई एक कर सकता है, लेकिन तहरीक चलाने के लिए कारवां चाहिए और वो कारवां एक एक करके जुड़ता जाता है। और आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि हम अपनी ज़ुबान को जाने बिना बहुत कुछ नहीं जान सकते हैं, जो जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और इसके लिए जैसे अपने घर में हम अपने बच्चों को घर के खाने का जायका उनको सिखाते हैं, घर की जो तहजीब है, पहनना ओढ़ना, लोगों के आपस में जो तारुफ होते हैं, रिश्ते होते हैं, उनको हम बताते सिखाते हैं, वैसे ही अपनी ज़ुबान से भी उनको उनका तारुफ कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उससे जुड़ाव महसूस कर सकें। और जो सबसे बड़ी आपने चिंता ज़ाहिर करी कि जो अदीब लिख रहे हैं, जो आज अदब के नाम पे जो भी तख्लीक की जा रही है, इसे पढ़ने वाला, इसको संभालने वाला, सहेजने वाला आखिर आगे कौन होने वाला है? तो जो होने वाले हैं उनको उर्दू ज़बान तो आनी चाहिए, ताकि वो बचा सकें, पढ़ सकें, आगे ले जा सकें, ज़रिया बन सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारी भी तहरीक के बकाए उर्दू की भी ये छोटी सी कोशिश है। कहते हैं समंदर में एक कतरे का कोई मोल होता नहीं है, लेकिन दरअसल समंदर भी कतरा कतरा मिलकर ही बनता है। तो हमारी छोटी सी कोशिश कि हमारी इस कोशिश में आप सबका साथ, पूरी दुनिया से उर्दू अदब की बड़ी शख्सियात हमारे साथ रोज़ जुड़ रही हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही बड़े एजाज़ की बात है। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आज बिलखुसूस डॉक्टर अहमद सगीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शाम 5 बजे थोड़ी सी टेक्निकल परेशानियां आने के बावजूद हमने आज रात 8:30 बजे बात की, और बहुत बेहतरीन बातचीत रही, क्योंकि हमसे मुखातिब थे डॉक्टर अहमद सगीर साहब। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सामईन, नाज़रीन आपका भी, कि आप जुड़े रहे और आप कमेंट करते रहे। आपकी बात मैं कोशिश करती रही कि पहुंचा सकूं सगीर साहब तक। कल शाम हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी रोजाना की तरह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शब बखैर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। जी।